A very good morning to all. Uh, Today, I welcome you all in this webinar on political philosophy of Michael Oakeshott, organized by the Department of Political Science, Vasanta College for Women, Rajghat, Varanasi. I'm very happy that today we have our Professor Naresh Dadhi sir as our resource person, and we have colleagues from the Department of Political Science, uh, Vasant Kanya Mahavidyalaya Kamacha, as well as Vasanta College Rajghat. Uh, uh, I welcome you all. I welcome you all. I can see Renu Srivastava. Good morning, Dee. So I welcome you all. And the objective of organizing this workshop is basically to introduce the student uh, to the contributions of Michael Oakeshott to the realm of political philosophy. Uh, if we will look at his contribution, we'll find that Oakeshott has written on various issues ranging from modes of experience, historical inquiry, conceptions of rationalism, competing understandings of modern state, religion, morals, education, Hobbes, and history of political thought. So, Oxford's contribution to the field of political philosophy is immense. Rico Parekh has rightly pointed out that Oxford is one of the few 20th century philosophers to have developed a distinct vocabulary of his own and to have contributed several new concepts, some of which are likely to prove of lasting value. We are very, very fortunate that today we have with us Professor Naresh Dadhich sir, or retired professor and former head Department of Political Science, Rajasthan University, Jaipur. Sir has a very rich experience of teaching and research in the field of political theory. He has his expertise in the field of political theory, Gandhian thought, and peace and non-violence. Professor Dadhich has contributed to the world of education, higher education in various capacities. He has worked as Vice Chancellor, Vardhaman Mahavir Open University from 2006 to 13. He has also worked as the Director, Center for Gandhian Studies, and Honorary Director, Institute of Development Studies, Jaipur. He has been members of various prestigious committees of UGC, NAC, NCRT. Sir has contributed immensely to the discipline of political science through his writings. He has authored 18 books. To name a few, Gandhi and Existentialism, John Rawls, Contemporary Political Theory, Samsamayik Rajnitik Siddhant, and Liberal Theory of the State. Sir has published 36 research papers. Sir has been recipient of various fellowships, awards, and distinctions like Pell Fellowship of Sal Regina University, Rhode Island, USA 2005, Chairman of Peace Education Commission IPRA 2002. Sir has visited various countries including USA, Canada, Belgium, South Korea, Israel, Turkey, South Africa on various academic assignments. We are really very fortunate to have you with us, sir, and we are sure that this lecture will benefit our students and they will get a understanding and a perspective to look at contribution of Michael Oakeshott to the realm of political theory. So once again, I welcome you, sir, on the behalf of the Department of Political Science, and I invite you for your lecture. Over to you, sir. Some voices, sound is coming. Didi, please renew the switch off your mic. Sir, you are not audible. Please unmute yourself. Sorry. Now I'm audible. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now you are audible. So first of all, let me thank you, the college in Varanasi, to invite me for
this interaction with your students and teachers about Michael Oxford. Michael Oxford, the first thing about Michael Oxford is that he's very abstruse philosopher. He's very difficult to understand. The reason is not that his thought is difficult. The reason is his language is difficult. And you can compare, because you can say that he's very difficult because he himself has written that I am inspired by Hegel. And we know that Hegel is also a very abstruse philosopher. He also used a very difficult language to decipher his own political thought. In the same manner, mm, Oxford is also a very difficult thinker because his language is very difficult. He uses a poetic language, and poetic language, if you want to explain your ideas in political science, then it is very difficult. You can compare or contrast him with, say, John Rawls, for instance. Now, John Rawls, if you read his books, the books are written in very simple language, although the ideas are very difficult. But here the contrast is that Michael Oxford's ideas are not so difficult, but his language is very difficult. So that is one point. And when I explain and try to explain it in a simple language, there is always a possibility that I will comment and I will interpret him wrongly, because I am also not a master of poetic language. So maybe I am not very fit for interpreting Michael Oxford. But whatever background I have in political theory, I have tried to put him in the scenario of political thought of 20th century in as a simple language as it is possible. He has written many things because he lived very long. He was born in 1901 and he died in 1990. So he had a very good life of 89 years. And he was a very prolific writer, in the sense that he did not write many books, but he studied many books and he reviewed many books. So he has written more than 150 articles, including review articles of various books and review articles of various thought thinkers. And all these writings have not yet been published. So we can say today, even today, that we do not know exactly what is Michael Oxford. What we know about him is the basic books which he has written long back, and we construct his political thought on the basis of those books. But when the new things will come up and get published, then I wonder that we will have the same type of approach towards Michael Oxford, or we can conceive him in a different way. We may conceive him in a different way. We may get some different interpretation of Michael Oxford in the coming years. What we are concentrating here is that he wrote 3 major books in his life. And when we talk about Michael Oxford, we based our teaching on the basis of these 3 books. The first book he wrote in 1933, that was Experience and Its Modes. The second book was written in 1962, that was Rationalism in Politics and Other Essays. And the third book is written in 1975 on Human Conduct. He has also written a very good introduction to Leviathan of Thomas Hobbes. And when we study Thomas Hobbes and we teach Thomas Hobbes in our classes, then if we talk about various interpretations of Hobbes, then we certainly mention Oxford's interpretation of Thomas Hobbes, because it has been accepted as one of the major contribution in understanding Thomas Hobbes. Later on, Quentin Skinner popularized Oxford's interpretation of Thomas Hobbes. So I will also touch upon that for a few minutes. Now, let me start with the essential of what is the essence of Michael Oxford, because I believe that when you interpret a thinker, then we should be very clear about how we want to approach it. I believe that every thinker who is fit enough to be taught or to be studied has got something essential in him which distinguishes him from other thinkers.
like it is the same type of approach as Aristotle had, that how will you distinguish between A and B? The basic thing between A and B is, the basic thing which distinguishes B from A is that there are three things which he mentioned, but the first thing which he mentioned is very important, that B is non-A. That is why we are talking of B. If B is an extension of A, B is a modification of A, then B doesn't have a separate entity. So if we say that B is separate entity than A, which means that B is not A, and B has got certain characteristics which are unique to it and which define it, then it has a separate entity in the world of in the worldly affairs. In the same manner, I believe that every thinker has got something unique in himself which distinguishes him from other thinker. He may be influenced by many thinkers, because no one can think in a space. No one can think in something which is in void. Everybody is affected by his environment, by his predecessors, by so many things. So thought is created by influences from various sources. But the beauty of a thinker is that he creates his own ideas in a way that distinguishes him from other thinkers. And not only the ideas are unique, but the ideas are such that are very important, that are not time bound. They are important for many years, for 100 years, or for 2000, for 200 years, or for 1000 years. If the ideas survive 100 years, or 200 years, or 500 years, then only we say that that fellow was a thinker. Michael Oakeshott is like that fellow. He is a great thinker, no doubt about it, and his ideas will certainly survive. He has given a new interpretation of what a philosophy is and what the political philosophy should be. That is the most important thing about him. And his ideas, which I am trying to explain, is based on these three books which I just mentioned. These three books are primarily related to each other. The first book is the philosophical book, Experience and Its Mode. Then he improved upon it or applied the conclusions of that book into studying politics. So in 1962 books, that is devoted mostly to how his philosophy can be applied to politics. And the third is human conduct, that how the philosophy can be created by reading human conduct, whether it is possible to have a philosophy of human conduct or not. Excuse me, sir. Yes. Sorry to interview. If possible, please keep it in bilingual mode, because the students are also from Hindi. Okay. No, sorry. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. When you start in this particular language, you just go on without. Let me summarize in Hindi for a few minutes. जिस विचारक की हम बात कर रहे हैं, वो विचारक बहुत ही मुश्किल विचारक है. लगभग मुश्किल इसलिए नहीं है कि उसके विचार बहुत ही कठिन है, वो मुश्किल इसलिए है कि उसकी भाषा बहुत कठिन है. भाषा कठिन हो सकती है, और भाषा कठिन इसलिए है कि वह एक तो उसने कवि वाली भाषा काम में ली है, कवित्व है उसकी भाषा में. और आप जानते हैं कविताएं अगर आप पढ़ें तो वो साधारण भाषा से मुश्किल होती है थोड़ी. उसमें दूसरे तरह के शब्द होते हैं जो कि कवि ही समझ सकते हैं, जो भावनाओं पर आधारित होते हैं, इमोशंस पर आधारित होते हैं. दूसरी बात, वह स्वयं एक फिलॉसफी में हीगल से प्रभावित था, और हीगल से प्रभावित होने के कारण से एक मिनट, सॉरी, हीगल से प्रभावित होने के कारण से उसकी भाषा हीगल जैसी मुश्किल भाषा है. उसने 3 पुस्तकें लिखी है जिसको मैंने बताया आपको, और उन 3 पुस्तकों में मुख्य रूप से उसके विचार समाहित हैं, और उसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है जिसको अभी प्रकाशित होना बाकी है, और जब प्रकाशित होगी तो शायद उसके बारे में हम अलग प्रकार से बात कर पाएंगे. लेकिन आज के संदर्भ में हम जब बात करते हैं माइकल ऑक्सफोर्ड की, तो वो उन 3 पुस्तकों पर आधारित होता है.
ये पहली पुस्तक है एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स. That is the first fundamental book in which he tried to explain how a philosophy can be constructed. That is the first thing. In second book, he applied that philosophy into studying politics primarily and other field also. And in the third book, he tried to convey what is a philosophy, what is his philosophy, you can say. फर्स्ट किताब है एक्सपीरियंस एंड इट्स मूड्स. इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, क्या वो कहना चाहता है इसके माध्यम से? उसने कहा है कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, नॉलेज की, वी नो अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज, दैट व्हाट इज अ नॉलेज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? फॉर इंस्टेंस, इंफॉर्मेशन इज दैट वी गेट नाउ डेज, वी हैव गूगल में बहुत सी सूचनाएं होती है, किसी भी चीज को आप देख सकते हैं, लेकिन वो सूचनाएं ज्ञान नहीं होती. व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेजेस आते हैं हमारे पास, तो हम सोचते हैं हमको इसका ज्ञान है. वो ज्ञान नहीं होती, वो सूचनाएं होती है. इवन गूगल में आप तय करें या इंटरनेट पे देखें बहुत सी जगह पर, तो वो ज्ञान नहीं होता, वो सूचनाएं होती मात्र. सूचनाएं ज्ञान में कन्वर्ट कैसे होती है, उसका एक तरीका बताया है जो कि कांट ने बताया था, इमैनुअल कांट. उससे इसको हम कंपेयर करेंगे. इमैनुअल कांट ने कहा था कि जो व्यक्ति को कि इंद्रियों से वो निरंतर सूचनाएं प्राप्त करता है. हम जानते हैं आंखों से प्राप्त करते हैं, हम सोचने से, हम सूंघने से करते हैं, टच करने से करते हैं. जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो हम हमेशा 24 आवर्स वी यूज्ड टू हैव इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस, एंड दीज इंफॉर्मेशन देन गेट इनटू आवर माइंड, एंड माइंड हैज गॉट सर्टेन कैटेगरीज. मस्तिष्क में कुछ कैटेगरीज होती है, उन कैटेगरीज में वो इंफॉर्मेशन कैटेगरी इस तरह बनी होती है कि वो इंफॉर्मेशन उनमें जाके फिट इन हो जाती है, और फिर रीजन के माध्यम से, रेशनलिटी के माध्यम से वो एनालाइज होती है और वो ज्ञान में कन्वर्ट होती है. दैट इज द वे इमैनुअल कांट हैज प्रेस्क्राइब्ड, एंड दैट इज व्हाई ही सेज दैट रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज रीजन इज दैट एलिमेंट व्हिच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज. ज्ञान को, सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए विवेक की आवश्यकता है कांट के अनुसार. और आप जानते हैं कांट जो है वो एनलाइटनमेंट एज का फिलोसोफर था, ज्ञानोदय युग का, 18वीं शताब्दी का अंतिम विचारक माना जाता है ज्ञानोदय युग का. उसके बाद में ज्ञानोदय युग समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना पड़ा क्योंकि वो आज भी जब हम फिलोसॉफी की, पॉलिटिक्स की थियरी की बात करते हैं तो हम उसी सिद्धांत को मानते हैं कि रेशनलिज्म इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. इसलिए कि साइंस जो है वो इस पर आधारित माना जाता है. विज्ञान की जो प्रोग्रेस है वह प्रोग्रेस मूलतः इस पर आधारित होती है कि विवेक के द्वारा कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाए, प्रयोग किए जाए और उसको विश्लेषित करके आगे बढ़ा जाए. सो रीजन हैज फॉर द लास्ट 400 years is accepted as the not only most important but the only criteria which can to judge whether something is knowledgeable, something is a knowledge or not. ऑक्सफोर्ड इसकी बिल्कुल विपरीत बात कहता है. ऑक्सफोर्ड रीजन की बात नहीं करके पहले बात करता है कि मनुष्य का जो अनुभव है वो क्या होता है. अनुभव किसे कहते हैं? ही बिगिंस हिज आइडिया बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इज एक्सपीरियंस. क्योंकि वो कहता है कि अगर इमैनुअल कांट की बात भी माने जाए तो पहले तो हमारे पास इंद्रियों में सूचनाएं तो आएगी, तो जो सूचनाएं आती है उसको वो एक्सपीरियंस का नाम देता है ऑक्सफोर्ड. कि जो हमको प्राप्त हो रहा है, जो हमको मिल रहा है हमारे इंद्रियों को, वो हमको अनुभव हो रहा है. वो अनुभव के क्या तरीके हैं, कितने तरीके से अनुभव होते हैं, तो उसके बताता है देयर आर 4 मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस. 4 तरह के अनुभव हमको होते हैं. मूल रूप से जितने भी अनुभव होते हैं उनको डिवाइड करके उसने कहा देयर आर 4 मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस. वन इज बिहेवियर, व्यवहार. सेकंड इज साइंस, विज्ञान. थर्ड इज हिस्ट्री, इतिहास. And fourth, which he added later on in some articles, which is not mentioned in the book Experience and its Modes, but later on he added that is poetic, कवित्व. तो 4 तरह के अनुभव की बात कर रहा है, यानी 4 तरह से अनुभव प्राप्त होता है व्यक्ति को, या जो अनुभव प्राप्त होता है उसको 4 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, कैसे भी कहें हम उसको. वो है एक तो व्यवहार, एक विज्ञान, एक इतिहास और एक कवित्व. अब ये चारों क्या है? व्यवहार और बिहेवियर. वी सी बिहेवियर of not only other human beings
but of nature also. हम प्रकृति का व्यवहार देखते हैं, प्रकृति में मौसम बदलता है, बारिश होती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, भूकंप आता है, दिन होता है, रात होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है. वी ऑब्जर्व ऑल दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ नेचर एंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. हम सब जानते हैं दूसरे व्यक्तियों से जो संबंध होते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, सच होता है, झूठ होता है, मित्रता होती है, शत्रुता होती है, घृणा होती है, प्रेम होता है. ये सब हमको एक्सपीरियंस, अनुभव होता है व्यवहार को देखने से. तो इसको वो मानता है कि ये एक्सपीरियंस व्यवहार, बिहेवियर पर आधारित है. और इससे एक्सपीरियंस क्या करता है मनुष्य? इससे एक्सपीरियंस करता है वो प्रैक्टिकल व्यवहार, यानी वो स्वयं व्यवहार कैसे करे, इसको नियत करने के लिए वो व्यवहार पर आधारित एक्सपीरियंस को आधार बनाता है. जैसे सर्दी हो तो मेरे को स्वेटर पहनना है. ये सर्दी हो अगर बाहर है तो उसको मेरे को मालूम पड़ा उसमें कि सर्दी हो रही है, तो उसका मैं काउंटर क्या करूंगा, उसका रेस्पॉन्स क्या करूंगा कि सर्दी हो रही है तो मुझे स्वेटर पहनना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए. गर्मी हो रही है तो मुझे गर्म कपड़े नहीं पहनने चाहिए. So my actual behavior in society is determined by the experience of behavior of others, of the world surrounding me. मेरे चारों तरफ जो दुनिया है, उस चारों तरफ की दुनिया को का जो व्यवहार है, उसको देखकर मैं अपने व्यवहार को नियत करता हूं. ये पहला एक्सपीरियंस का पहला मोड है. दूसरा वो कहता है विज्ञान है. विज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, विज्ञान का अर्थ ये कि यही एक्सपीरियंस जो हमको होते हैं, तो एक्सपीरियंस तो इसी प्रकार के होते हैं हमको लाइफ में, उन एक्सपीरियंस को हम क्वांटिफाई करते हैं. वी अप्लाई रीजन टू दैट एंड वी क्वांटिफाई, क्वालिफाइड, सिस्टमेटाइज दीज एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशंस इन आवर माइंड एंड देन वी एनालाइज इट एंड देन वी बिहेव अकॉर्डिंगली. यानी दो अलग अलग बातें हैं कि जैसे सर्दी लगने पर स्वेटर पहनने में हमको कोई विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती कि कोई उसको एनालाइज करें कि कितनी डिग्री हो रही है. जैसे हम ये नहीं कहेंगे आज डिग्री कितनी है, आज 15 डिग्री हो गया टेम्परेचर तो हमको पहनना चाहिए, या 5 डिग्री हो गई तो पहनना चाहिए. ऐसा सामान्यता हम नहीं करते. हम स्वेटर कब पहनते हैं? जब हमको सर्दी लग रही है. डिग्री बाद में देखते हैं. आजकल तो सुविधा हो गई है कि हम देख ले अपने मोबाइल में कि आज की क्या क्या कितना तापमान है और कल कितना तापमान होगा, उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार कर ले. लेकिन इसको न भी माने, उस समय तो नहीं थी व्यवस्था जब ऑक्सफोर्ड ने लिखा था, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है. आज भी हम मोबाइल में डिग्री देखकर कपड़े नहीं पहनते हैं, चाहे हमारे पास ये सुविधा है, क्योंकि सर्दी हर व्यक्ति को कितनी डिग्री पर सर्दी लगने लगेगी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है. किसी को 16 डिग्री पर सर्दी लगेगी, किसी को 10 डिग्री पर लगने लग जाएगी, किसी को 20 पर भी सर्दी लगने लग जाएगी. तो सर्दी डिग्री तो माप सकते हो आप, लेकिन सर्दी किससे लगेगी ये नहीं माप सकते. हर व्यक्ति अलग अलग है. तो दूसरा जो एक्सपीरियंस है वो ये जो डिग्री बताने का एक्सपीरियंस है, यानी व्यवस्थित ढंग से जो व्यवहार है प्रकृति का और मनुष्य जिसमें सम्मिलित है, उनके व्यवहार को, प्रकृति को कैसे हम उसको सिस्टमेटिक करके, व्यवस्थित करके, रेशनली उसको विश्लेषित करके अपने तक लेते हैं, वह दूसरे प्रकार का एक्सपीरियंस है. दैट इज द सेकंड एक्सपीरियंस. द थर्ड इज हिस्ट्री. नाउ हिस्ट्री इज व्हाट ही कॉल्स is the experiences of the past. And if we know about our past, then we can also make, that is what we can secure our future also. For instance, we can say day to day life कि हम यहाँ रहते थे, हम बुजुर्ग हमारे कह सकते हैं वो एक बार ऐसा अकाल पड़ा था, जैसे अभी कोरोना संकट आया था, तो सबने देखा कि एक बार कैसा क्या किया जाना चाहिए. तो देखा कोई प्लेग एक बार आया था ऐसा ही 1917-18 में भारत में, तब इसी प्रकार का एक कोरोना संकट आया था बहुत बड़ा, जिसमें सब लोग अंदर चले गए थे. जो छूत की बीमारी थी, जो सांस से फैलती थी, तो वो उस एक्सपीरियंस को काम में लिया जाए. ऐसे ही आज ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी बात है हमको जीवन में कि आज सर्दी लगनी, पिछली साल सर्दी में ऐसा हुआ था, उसकी पिछली सर्दी में ऐसा हुआ था. तो हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं, एक्सपीरियंस हमको बताता है कि हिस्ट्री में, पास्ट में ऐसा हुआ था. उसको हम अपने एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं कि मैं तो नहीं था, लेकिन जिन्होंने उसको भोगा है, देखा है, लिखा है, उसको पढ़कर, उनसे बात करके, उनको सुनकर हम आज के अपने जीवन के व्यवहार को परिवर्तित या नियंत्रित कर सकते हैं और करना चाहिए. दैट इज थर्ड टाइप, दैट हिस्ट्री इटसेल्फ is a very good basis for our experience and to determine our experience.
So this is also one part, a very important part of experience of human beings. और इससे एक्सपीरियंस से क्या होता है, हम क्या करेंगे आगे, एक्सपीरियंस लेकर क्या करते हैं, हमारा उनको अनुभव हो गया, उस अनुभव का क्या लाभ है? अनुभव का लाभ यह है कि हम उस अनुभव के आधार पर आगे जीवन कैसे व्यतीत करें, वो अनुभव का अर्थ है। अन्यथा अनुभव का क्या अर्थ है, मेरे को बहुत अनुभव है और मैं उसको, जैसे मेरे को मान लो माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में कुछ मालूम है, अब मैं उसको लेकर ही मर जाऊं तो उससे क्या मतलब, मैंने कुछ लोगों को बताया तो आई शेयर्ड इट विद सम अदर्स, दैट इज द बेनिफिट ऑफ शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो इतिहास जो है वह शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस है। जिसने इतिहास में जो लोग थे उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था उसको लिखा है, नजदीक है तो उन्होंने हमको बताया, जीवित है वो व्यक्ति तो नहीं है तो उन्होंने लिखा है, कहीं पर रिकॉर्ड किया है। उस रिकॉर्ड के आधार पर हम सोचते हैं कि पहले ऐसा हुआ है तो आगे ऐसा होगा और हमें ऐसा करना चाहिए। हमने देखा, अगर नेशनल मूवमेंट का अध्ययन हम करें, राष्ट्रीय आंदोलन का, तो हम देखेंगे ये कारण थे जिसके कारण से हम पराजित हुए और उसके कारण से हमको गुलाम बन के रहना पड़ा। तो उसका एक्सपीरियंस ये है कि हम आगे ऐसा ना करें जिससे कि वापस से गुलाम बन जाए, उसका ध्यान रखें। That is the experience of the past. So the third mode of experience is what he calls history. The fourth, which he added later on, is that all these things are related to one sense, either instant reaction or rationality in one sense. But there are certain experiences which are poetic experiences, which are unscientific, which are emotional, which are not rational. वो रेशनल नहीं होते, वो भावनाओं पर आधारित होते हैं। और भावनाओं पर आधारित जो एक्सपीरियंस है वो भी महत्वपूर्ण है, अपने अनुभव में आते हैं कि हम किस कवि को देखकर, किसकी कविता सुनकर हम भाव विवल हो जाते हैं, कौन से भाव हमको उद्वेलित करते हैं। जब हम लड़ाई में हमारे सैनिकों को मरते देखते हैं तो हमको कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और उनसे हमको क्या प्रेरणा मिलती है, हमको क्या करना चाहिए। जब युद्ध होता है तो हमारे में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो हमारे में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, वही हमको क्या करना चाहिए, इसमें ये क्या हो रहा है, हम सब ये दंगा हो गया, कुछ हो गया, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, तो इसके बाद में हम कैसे रहेंगे साथ में। ये एक एक्सपीरियंस हमारा हमको मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे एक्सपीरियंस मिलता है। दैट इज पोएटिक, which is not scientific, which is not rational, which are created by impressions on our mind. That is poetic. जैसे चुनाव में वोट देने जाते हैं तो वोट देने क्यों जाएं, किसको दें? एक तो होता है रेशनल तरीका, हम सोचें बहुत कुछ कि भाई इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, इस पार्टी ने ऐसा किया, इस उम्मीदवार ने ऐसा किया है, तो इसके गुण और दोष को दोनों को देखकर और उसके सामने कौन खड़ा हुआ उसको देखकर हम वोट देने जाएंगे। एक होता है पोएटिक, भाई हमने देखा कि भाई राजीव गांधी बड़े हैंडसम है, हमने देखा भाई ये बहुत हैंडसम लग रहे हैं, इनको वोट दे दो। इसमें सोचने क्या हमारे वोट से क्या फर्क पड़ना है, तो एक वोट ही देना है, तो भाई जो अच्छा लग रहा है हमको, जैसे फिल्म देखने जाते हैं, भाई शाहरुख खान बड़ा अच्छा लग रहा है तो हम उसको वोट दे दो, हम उसकी फिक्स देखने चले जाएंगे। ऐसे ही हम वोट देने भी चले जाते हैं। इफ यू सी समवन, योर कैंडिडेट और योर पार्टीज लीडर, that he is handsome, he talks very sensibly, he appeals to our heart, then we should vote for him. Whatever the consequences, we do not bother about that. We don't evaluate him on the basis of rationality. We just swayed away by his personality, his charmingness, his charm, his style of speaking, his style of arousing emotions in people, whatever may be the reason. तो वो एक होता है, जिसे उसने कहा है फोर्थ, वो है पोएटिक, कि वह पोएटिक है। इसका अर्थ यह है कि जो नॉन रेशनल एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते हैं वो इसको बनाते हैं एक्सपीरियंस को। तो ये उसकी पहली पुस्तक, जिसके बारे में मैंने बताया कि उसने सबसे पहले आरंभ किया कि एक्सपीरियंस क्या होता है, जो अनुभव है उसे क्या, वो क्या होता है, और जो अनुभव होता है उसके आधार पर उसने कहा कि ये जो अनुभव हुआ है ये आधार बनाता है हमारे दर्शन का, रीजन नहीं बनाता, विवेक नहीं, इसने विवेक की कल्पना नहीं की इसमें पूरे में, ये ऑल्टरनेट एक विकल्प दे रहा है कि कैसे हम दर्शन का निर्माण करें। तो एक्सपीरियंस के आधार पर हम दर्शन का निर्माण करेंगे। एक्सपीरियंस, ये 4 मोड्स आर द बेसिस पिलर्स on which philosophy is created. Philosophy is not part of this experience. दर्शन इस अनुभव का हिस्सा नहीं है, दर्शन इस अनुभव के कंधे पर बैठा हुआ नया स्ट्रक्चर है। ये जो 4 अनुभव के आधार है, ये पिलर्स हैं और इनके आधार पर हम अनुभव करते हैं
इससे हम दर्शन का निर्माण करते हैं। और जब दर्शन का निर्माण होता है तो चूंकि ये चारों अनुभव जो हैं ये भी मूर्त नहीं होते हैं, ये अमूर्त होते हैं। इट इज experienced is exemplified in concrete, but they are primarily abstract। जैसे मैंने बताया, वो छोटा उदाहरण आपको दिया था कि हम मूल रूप से, हमको सर्दी कब लगने लगी, ये दिस इज एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग इन आवर सेल्फ। मुझे लगने लगी कि आज सर्दी है तो मुझे पहन के बैठना चाहिए। नाउ इट इज नॉट, नाउ पहन के बैठना इज कॉन्क्रीट, ये तो यथार्थ है, इसको मैंने पहना। लेकिन ये जो फीलिंग मेरे में आई कि मेरे को पहनना चाहिए, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये अमूर्त है, ये दर्शन है। इसको अगर थोड़ा बड़ा करें तो फिलोसॉफी बना सकते हैं। लेकिन ये जो कह रहा है ऑक्सफोर्ड, ये कह रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस है इसके आधार पर दर्शन बनता है, और दर्शन अमूर्त होता है। और अमूर्त क्यों होता है? क्योंकि उसका मानना है कि जीवन भी अमूर्त होता है। लाइफ इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, इट इज नॉट कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट वो हो जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकें, जिसके बारे में हम एनालाइज कर सकें रेशनली। बट वी नो दैट लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ मेनी इररेशनल एलिमेंट्स, एंड इट इज ह्यूमन माइंड, जो कि इमैनुअल कांट ने कहा था, सही कहा था कि ह्यूमन माइंड है वो हर चीज को, हर घटना को रेशनली तय करना चाहता है, रेशनली बनाना चाहता है। ये उसकी प्रवृत्ति है, और उसमें रीजन डाल के उसको समझने की कोशिश करता है। चाहे वो रीजन सही है या गलत है, तार्किक ढंग से समझने की कोशिश करता है हर प्रकृति के अनुभव को, प्रकृति की घटनाओं को, मनुष्य की घटनाओं को, हर व्यवहार को। हम भी सोचते हैं किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हम क्या करते हैं, हम एकदम सही मानते हैं उसने ऐसे गुस्से में कर दिया। हम कहते नहीं, इसके पीछे कोई कारण होगा। यार ये आजकल 2 दिन से मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे को नमस्ते नहीं कर रहा है, मेरे से मुंह उधर करके चला जाता है, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि इसको मूड हो गया, इसका मूड ऐसा है, नहीं, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। वी वांट टू नो अबाउट द रीजन। Now, when you want to know about reason, it means we are trying to find a rational explanation of changed behavior। अगर किसी व्यक्ति का आपके साथ व्यवहार परिवर्तित हो रहा है तो आप उसको ये नहीं मानते इसका मूड ऐसा, 1 दिन हो तो 2 दिन हो तो आप कहोगे नहीं, इसके पीछे कोई कारण है। रेशनली आप सोचने लगते हो, मैंने कुछ कहा, इससे बुरा लग गया है, या इसका कोई दूसरा दोस्त बन गया है, या ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, किसी मेरी बात से नाराज हो गया है, या इसकी इंटरेस्ट कोई और हो गए हैं, हमारे साथ इंटरेस्ट नहीं रहे। तो वी वांट टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ हिज चेंज्ड बिहेवियर थ्रू रेशनलिटी। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो कांट ने सबसे पहले इंगित किया कि एक मनुष्य हर चीज को विवेक से देखना चाहता है। अब ये तो उसका पहली पुस्तक है जिसके बारे में उसने बात की। दूसरी पुस्तक के बारे में बात करें, वो है रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस। यहां पर वो रेशनलिज्म की बात करता है, यानी अब वो आया, अब तक तो उसने बताया कि एक्सपीरियंस बेसिस है फिलोसॉफी का। अब ये जो पुस्तक है इसमें बताने की कोशिश करी उसने कि जो एक्सपीरियंस है वो बेसिस है, लेकिन जो अब तक बेसिस है आपका वो गलत है। रेशनलिज्म इज नॉट अ साउंड बेसिस फॉर फिलोसॉफी। So what is rationalism and what are the limitations of rationalism? Now he is trying to talk about it. जिस समय उसने ये पुस्तक लिखी 1962 में, आप जानते हैं उस समय राजनीति विज्ञान में बिहेवियरलिज्म अपने पीक पर था। और ये पुस्तक एक दिन में नहीं लिखी गई, इसके बहुत से एसेज हैं जो 1933 के बाद में लिखे गए थे, उन सबको कंपाइल करके ये किताब सामने आई है। यानी हमने देखा, आप जानते हो, आपने बिहेवियरलिज्म पढ़ा है, तो 1930s में बिहेवियरलिज्म सबसे पहले आया था। चार्ल्स मेरियम ने, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेड थे, उनके नेतृत्व में व्यवहारवाद बहुत तेजी से आरंभ हुआ और बहुत से लोग उससे जुड़े, जिन्होंने 1930 के अंत के आते आते व्यवहारवाद को बहुत प्रमुखता से सामने लाने का प्रयास किया। 1940 के दशक में और 1950 के दशक में व्यवहारवाद एक बहुत और वैकल्पिक राजनीतिक चिंतन के रूप में उभर कर सामने आता है, जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी। और उस एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी के कारण से हम देखा 40 और 50 का दशक, ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी थी इसके बिल्कुल विपरीत था, इसको माइनर माना गया था। और 2-3 अधिकतर जो विचारक थे, अधिकतर जो पॉलिटिकल साइंस में काम कर रहे थे, वो लोग एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी को महत्व दे रहे थे। आमन, पावेल, बहुत से लोग आप जानते हैं, चार्ल्स मेरियम वगैरह, इन सब लोगों ने, ईस्टर्न, इन सब लोगों ने व्यवहारवाद या एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी को ध्यान दिया, यानी रीजन को ध्यान दिया, विवेक और फैक्ट्स, तथ्य, और इसके आधार पर एक साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करके इसको राजनीति को विज्ञान बनाया जाए। अब
इस समय में पीक पर जब ये था, उस समय जो परंपरावादी राजनीतिक वैज्ञानिक थे या राजनीतिक दार्शनिक थे वो माइनॉरिटी में थे, उनमें ऑक्सफोर्ड था। ऑक्सफोर्ड ने उस समय उसके बारे में बात की है और उसका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। आप जानते हैं ऑक्सफोर्ड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के, और उन्होंने हैरोल्ड लास्की के बाद में इनको ज्वाइन, उनकी पोस्ट को ज्वाइन किया। ही सक्सीडेड हैरोल्ड लास्की इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हैरोल्ड लास्की वाज अ सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट, moderate leftist you can say, and he was considered a conservative। तो वहां पर जैसे कहीं पे भी प्रोफेसर ज्वाइन करता है तो एक वो वक्तव्य देता है, अपना भाषण देता है सारी कम्युनिटी, सारी स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने। तो इन्होंने वक्तव्य दिया था, उसको उस पर बड़ा विवाद हुआ। उससे इन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी विचारधारा क्या है 1951 में। उसमें उन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज पॉलिटिक्स, और इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है। पॉलिटिक्स का अर्थ है, पॉलिटिक्स इज ए सीमलेस ओशन। राजनीति एक असीमित समुद्र है जिसमें कोई द्वीप नहीं है, कोई नाव नहीं है, कोई जहाज नहीं है, कोई बचने का तरीका नहीं है। यू कांट एस्केप दिस ओशन by finding an island or by finding a boat. You can't leave this ocean. So what you have to do, politics is like this ocean. So what you have to do is to flow in this ocean and to be familiar with the ocean without trying to escape it rationally or anything else. यानी समुद्र की तरह है ये, जिसका कोई सीमा नहीं है। इसमें अगर आप जाना चाहते हैं राजनीति में तो आप उसके साथ साथ तैरिए, उसकी अच्छाइयां बुराइयां सबको आत्मसात कीजिए। आपके बचने का कोई तरीका नहीं है, आप कोई रीजन रेशनलिटी लगाकर इससे बच नहीं सकते। ये जब उसने परिभाषा दी तो इस पर बड़ा विवाद हुआ। साहब ये तो जो आए हैं ऑक्सफोर्ड महोदय, ये तो राजनीति को मानते हैं कि कोई वैज्ञानिक तरीका ही नहीं है इसको बचने का, राजनीति को पढ़ने का तरीका ही नहीं है। इन्होंने कठोर प्रहार किया है बिहेवियरलिज्म पर और एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी पर कि राजनीति को व्यवस्थित ढंग से देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, इसकी स्टडी की जा सकती है। ऐसा नहीं है। कि तो कहते हैं कि इट्स ए सीमलेस ओशन, जहां पर आप तैरते रहिए और कुछ भी नहीं है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ माइकल ऑक्सफोर्ड दैट व्हाट ही इज गोइंग टू टीच एंड हाउ ही इज गोइंग टू टीच। और वो उसने जो आर्टिकल लिखे वो बाद में 1962 में जाकर रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स के नाम पर प्रकाशित हुए। अब रेशनलिज्म का क्या अर्थ है? व्हाट इज रेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड? सामान्यतः हम जब रीजन या रेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक मेथड है, तरीका है। जैसा एक कांट ने कहा था कि इंफॉर्मेशन, सूचनाएं बहुत सी आ जाएगी, उन सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित करने का काम रीजन का है, विवेक का है। तो इट इज ए मेथड by which informations are organized, classified and converted into knowledge। लेकिन ऑक्सफोर्ड ये नहीं मानता। ऑक्सफोर्ड कहता है ये तो दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ रेशनलिटी और रीजन, यानी ये तो रीजन का काम बताया जा रहा है कि रीजन करता क्या है। इट्स ओनली वर्किंग ऑफ रीजन इन प्रैक्टिस, बट दैट इज नॉट रीजन, दैट इज नॉट रेशनलिज्म। रेशनलिज्म इज ए फिलोसॉफिकल faith in a particular type of thinking। ये तो रेशनलिज्म करती है कि आप किसमें विश्वास करते हो, वो रेशनलिज्म है। एक विशेष प्रकार का विश्वास आपका है, there is a particular type of faith you have which is to be called rationalism। This is what we say that reason is applied to convert information into knowledge is only a method of reason, it is not rationalism। Rationalism is a philosophy, philosophical base, and he attacked that philosophical base। उसने कहा कि रेशनलिज्म का अर्थ यह है कि यह माना जाए कि यथार्थ को या वास्तविकता को जानने का एकमात्र तरीका विवेक है। दैट इज अ फिलोसॉफिकल बेस। यानी यथार्थ को जानने का, रियलिटी को जानने का एकमात्र तरीका केवल वो है, और परफेक्शन अगर आपको करना है तो रीजन के अलावा कोई तरीका नहीं है। यानी अगर आप इसको यूं देखें तो अगर आप व्यवहार में किसी चीज में परफेक्शन करना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं एक प्रोफेशन में किसी में, तो आप कहेंगे रीजन के अलावा कोई तरीका नहीं है।
उसको उसने उदाहरण दिया, जैसे मैं ये कहूं कि मैं राजनीति का प्रकांड पंडित बनना चाहता हूं, तो रेशनलिटी के अनुसार मुझे राजनीति से संबंधित सभी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अगर मैंने सभी पुस्तकों का अध्ययन कर लिया, दैट इज द रेशनल वे, देन आई एम द एक्सपर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ऑक्सफोर्ड कहता है कि ये तरीका, ये जो फेथ है, ये जो विश्वास है, ये बिल्कुल गलत है। व्यवहार में परफेक्ट बनने के लिए मनुष्य को रीजन की आवश्यकता नहीं होती, रीजन से नहीं हो सकता। विवेक से मनुष्य अपने व्यवहार को संपूर्ण पूर्ण नहीं बना सकता, किसी प्रोफेशन में भी संपूर्ण नहीं बना सकता रीजन के आधार पर। उसने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है शेफ का। उसने कहा कि अगर आप किसी होटल का कोई शेफ है, जो बहुत बढ़िया शेफ है, जिसके खाने के लिए सब लोग उस होटल में जाते हैं, अब कोई नया शेफ बनना चाहता है, कोई नया बच्चा ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो चाहता है मैं इस शेफ जैसा बढ़िया शेफ बनूं, तो कैसे बनेगा वो? तो क्या करेगा? अगर वो रेशनलिज्म में विश्वास करता है, तो वो खाना कैसे बनता है इसकी बहुत सी पुस्तकें मिलती है, आप तो आजकल तो वीडियो भी अवेलेबल है, तो खाना कैसे बनता है इसको किताबें पढ़ेगा, और किताबें पढ़कर वो एक्सपर्ट हो जाएगा कि इसमें इतनी धनिया डालिए, इतनी मिर्च डालिए, इतनी सब्जी में ऐसा कीजिए, इतनी सब्जी के लिए ऐसा कीजिए, इतनी मिठाई में ऐसा काम कीजिए, यानी हर चीज लिखी हुई मिलेगी आपको परफेक्ट, उन लोगों के द्वारा मिलेगी जो जिन्हें कि हम परफेक्ट शेफ मानते हैं। तो उसको पूरा पढ़कर वो एक्सपेरिमेंट करता है अगर खाना बनाने में, तो क्या वह एक परफेक्ट शेफ बन सकता है वैसा जैसा कि वो चाहता है? ऑक्सफोर्ड कहता है ऐसा संभव नहीं है। ऑक्सफोर्ड कहता है उसको अगर परफेक्ट शेफ बनना है, तो वो उसके साथ गलती क्या करेगा कि वो अगर वो अच्छा नहीं बना पाया खाना जैसा कि वो चाहता है, जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं उसके अनुसार वैसा नहीं बना पाया, तो वो करेगा यार इससे अच्छी किताब लानी चाहिए, किताब अच्छी नहीं है उसकी, दूसरे की उनकी जो किताब है वो ज्यादा अच्छी है, आजकल लेटेस्ट वो चल रही है, उसकी किताब लानी चाहिए, उसमें शायद ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। फिर उसमें कोशिश करेगा, फिर उससे भी नहीं बनेगा तो कहेगा वो तीसरी किताब लानी चाहिए। यानी ही विल ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू रीजन एंड रेशनलिटी और रेशनल अप्रोच, बट ही विल नॉट बिलीव दैट व्हाट ही इज डूइंग इज फंडामेंटली रॉन्ग। अगर आपको अच्छा शेफ बनना है, तो आपको एक अच्छे शेफ के साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए, न कि किताब पढ़नी चाहिए शेफ बनने की। और जीवन में ऐसे बहुत सी चीजें हैं, एक्सेप्ट सिद्धांतिक, जिसे हम कह सकते हैं सिद्धांत में भी ये है कि मैंने किताब पढ़ ली, मैं एक्सपर्ट हूं माइकल ऑक्सफोर्ड का, तो मैं सिर्फ किताबें पढ़कर माइकल ऑक्सफोर्ड का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। मैं, जिन्होंने माइकल ऑक्सफोर्ड पढ़ा है, जिन्होंने उसके साथ काम किया है, जिन्होंने उसको अलग तरह से व्याख्यात किया है, मैं उनके साथ जब तक इंटरेक्शन नहीं करूंगा, लाइव इंटरेक्शन नहीं होता रहेगा निरंतर, तब तक मैं कोई बड़ा इंटरप्रेटर ऑफ माइकल ऑक्सफोर्ड नहीं बन सकता। आप पढ़ रहे हैं माइकल ऑक्सफोर्ड, जो मैं बातें बता रहा हूँ, किताब लिखी हुई है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने कोई महान बात नहीं की है, लेकिन आपका ये लेक्चर करवाया जा रहा है। टीचर क्यों होते हैं क्लास में? क्योंकि वो लाइव एक्सपीरियंस होता है बच्चों को कि एक चीज को कैसे पढ़ा जाए, उससे वो सीखता है, इसलिए कक्षाएं होती है, वरना कक्षाओं क्या जरूरत है? सारी चीजें किताबें लिखी हुई है, सारे आपके जो सिलेबस में है, जो लिखा हो सब पे किताबें मौजूद है, किताबों के रेफरेंसेस भी दिए होते हैं। कक्षाओं के टीचर की आवश्यकता ही क्या है? देयर इज नो नीड फॉर एनी टीचर, यू जस्ट गो एंड रीड, स्टूडेंट read in books. I am also reading books and I am telling you about by reading books, after reading these books. लेकिन क्यों? क्योंकि जब लाइव इंटरेक्शन होता है, जब ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन होता है, तो कई चीजें जो आप सीखते हैं, सुनते हैं, उनमें कौन सी बात कैसे उसको यूज किया जाए, वो सिर्फ लाइव इंटरेक्शन से ही मालूम पड़ता है, वो किताब के पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए उसने कहा, शेफ का उदाहरण दिया कि शेफ अगर अच्छा बनना है, तो उसे किसी अच्छे शेफ के साथ बैठना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा। जो अच्छा शेफ होता है, वो आप जानते हैं, आप सब, बहुत सी महिलाएं यहाँ इसमें हैं, बहुत से जो घर में खाना बनाती होगी, तो वो कोई देख के नहीं बनाती कि नमक उसमें इतना सा, उसमें जैसे किताब में लिखा होता है कि 2 औंस डालिए, और वो अपने अंदाज से उसमें निकाल के डाल देती है हाथ से, और वो होता वैसे ही अच्छा, सिर्फ अंदाज से बनाती है, और उस अंदाज से खाना बहुत अच्छा बनता है। वाई? बिकॉज दिस इज एक्सपीरियंस। So experience give you knowledge, not reason give you knowledge. That is the argument which he is trying to give.
शेफ जैसा नहीं बन सकता कि वो अच्छा शेफ बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, रीजन की आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत सी एक्टिविटीज में है, मनुष्य की अधिकतर एक्टिविटीज में वो मानता है कि सिवाय बौद्धिक एक्टिविटी के, जो बहुत कम होती है, जो सामान्य आदमी को प्रभावित नहीं करती। हम जो आप जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये तो भारत की आबादी का 1% है, उससे भी कम होंगे शायद जो हम लोग बात कर रहे हैं। इसको समझने के लिए जो लोग उत्सुक हैं, वो 1% भी पॉपुलेशन नहीं है, उससे भी कम पॉपुलेशन है। लेकिन खाना बनाना तो 99% पॉपुलेशन खाने में इंटरेस्टेड है, 100% ही है। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, आप भी है। तो जो जीवन में अधिकतर लोग सब समय पर करते हैं, उसको जानने के लिए रीजन की आवश्यकता नहीं है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। और राजनीति इसलिए वो है जो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसलिए इन पॉलिटिक्स ऑल्सो व्हाट यू रिक्वायर इज नॉट रेशनलिटी, बट यू रिक्वायर एक्सपीरियंस। आप देखिए आजकल जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव में कितने भी गणित लगा लें आप, जोड़ बाकी, आजकल क्या जोड़ बाकी करते हैं भारत में चुनाव में, कि हम कहते हैं कि किसकी कितनी कास्ट है, कास्ट कंपोजिशन क्या है, कास्ट के लीडर्स कौन से हैं, कौन से पॉलिटिकल पार्टी किस कास्ट को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। मूल रूप से इस पे विचार करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो आते हैं तो पता ही नहीं पड़ता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। आप जानते हैं हमेशा रिजल्ट नए तरीके आते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के मन कैसे हैं, वो कब बदल जाते हैं, वो क्यों किसी को वोट देना चाहते हैं, और एक साथ सारे लोग मिलकर एक ही पार्टी को वोट क्यों देना चाहते हैं पूरे भारत में, ये समझना आसान नहीं है। ये रीजन से समझना आसान नहीं है। कोशिश करना चाहिए, रीजन से हम करते हैं, लेकिन उससे समझ पाए ये जरूरी नहीं है। हमारे कोशिश होती है हमेशा, जैसे ये तो ह्यूमन माइंड है, जो मैंने बताया इमैनुएल कांट ने कहा, ह्यूमन माइंड है कि वो हर चीज को रेशनल तरीके से सोचना चाहता है। क्यों सोचना चाहता है? क्योंकि उससे उसको लगता है कि वो नियंत्रित कर लिया है, उससे मेरे को समझ में आ गया। समझ में आने का अर्थ है कि मैंने नियंत्रित कर लिया। यानी अगर आपको बच्चा है, वो जा रहा है, तो आपको अगर पता लग गया, आप कहते हो मैं इसको देखना चाहता हूँ, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, मालूम पड़ते ही आपको लगता है, आप में सेंस ऑफ पावर आती है कि आपने उसको कंट्रोल कर लिया। नाउ यू कैन कंट्रोल हिम बिकॉज यू नो हाउ ही थिंक्स, हाउ ही मूव्स। इफ यू नो रेशनली, देन यू कैन कंट्रोल हिम रेशनली। तो कंट्रोल करने की भावना, जो प्रकृति पर नियंत्रण करने की भावना से रीजन आरंभ होता है। कि साइंस का विकास क्या है कि हम प्रकृति को पहले पहचाने, और फिर जब पूरी पहचान लेंगे तो हम उस पर नियंत्रण कर लेंगे। हम मालूम होगा मौसम कैसे चेंज होता है, बारिश क्यों होती है, फिर जब बारिश होना मालूम पड़ जाएगा इसलिए होती है, तो हम खुद ही बारिश कर लेंगे, कोशिश करेंगे, नियंत्रण कर लेंगे, बारिश यहाँ ना हो, वहां पर जैसे आजकल कई जगह पर होती है, आर्टिफिशियल बारिश भी की जाती है। व्हाट इज दैट? हमको मालूम पड़ा बारिश ऐसे होती है, तो बारिश को, यानी रीजन से, विवेक से जानने का अर्थ यह है कि जिस चीज को आप विवेक से जान रहे हैं, आप बाद में उसको नियंत्रण करना चाहते हैं। ये मनुष्य का प्रकृति है, स्वभाव है, जो इमैनुएल कांट ने कहा। ये कह रहा है ऑक्सफोर्ड कि नियंत्रण की रीजन से जाना ही नहीं जा सकता, और लाइफ का जो 90% जो भाग है, 99% भाग जो है, वो रीजन से मोटिवेटेड होता ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस से होता है। जैसे शेफ का उदाहरण दिया, जैसे कार का उदाहरण ले, आप कार चलाते हैं, हम सब लोग स्कूटर चलाते हैं हम लोग, तो कईयों के बारे में कहते हैं यार वो बहुत अच्छा ड्राइवर है। तो कार चलाना सीखना इज ए साइंस और एन आर्ट। पेंटर पेंटिंग करता है, इट इज एन आर्ट और ए साइंस। यू आर ऑल मोस्ट ऑफ यूर स्टूडेंट, समवन राइट्स, जो मैं बता रहा हूं उसको कुछ समझ के कोई अच्छा लिखेगा, कोई दूसरी तरह से लिखेगा। व्हाट इज द डिफरेंस? एवरीबडी इज लिसनिंग टू द सेम लेक्चर, बट इफ यू आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन व्हाट आई हैव सेड, then you will find difficulties, different status, different types of how they understood what I've said. So it is a science also, it is an art. Painting is an art. What is a poetry? How can you write a poem? सबको आती है, हिंदी के शब्द ही होते हैं, और क्या हिंदी में लिखो कविता तो। लेकिन कई कहते हैं इतने बड़ी अच्छी बात कही है, क्या शानदार कविता है, कई कहेंगे यार इसने तुकबंदी करी। What is the difference? It is not a science, it is an art. So life is an art, not science. So politics, which touches everyone's, in democracy it touches everybody, so it is an art, not a science. इसलिए जो बिहेवियरलिज्म से हम जो डेटा कलेक्ट करके, और जो एनडीटीवी पर जो भाषण होते हैं कि ये इतने वोटों से आगे चल रहा है, इतने से पीछे चल रहा है, ये बाद में बताते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसको इसने वोट क्यों दिए, ये हम डिस्कस करते रहते हैं। वोट कौन देगा, किसको क्यों देगा, ये मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, होता कुछ है, you never know. So ये इस बात को एम्फेसाइज कर रहा है मुख्य रूप से कि रेशनलिज्म इज मींस बिलीफ इन
absolute belief in reason that that is the only way to know reality. And he criticizes, no, only experience is the way to know the reality. And that is also not complete. No one can claim that he has completely know what is happening and what is going to happen. हम जानते हैं जन्मपत्री, हम लोग सब देखते करते हैं, क्या है जन्मपत्री? एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज अगेन एन अटेम्प्ट टू रेशनली एनालाइज द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सूर्य इसमें होगा, मंगल इसमें होगा, चंद्रमा इसमें होगा, उसकी दशा चल रही है, वो उसको देख रहा है, इसमें डेबिलेटेड है, इसमें उच्च का शनि है. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लेन ह्यूमन इवेंट्स बाय वे ऑफ रेशनलिटी. रीजन से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सही है गलत है वो अलग बात है. तो ये ह्यूमन माइंड है जो हमेशा से ऐसा रहा है कि चीजों को जब आप ये मालूम कर लेंगे कि शनि ऐसा होता है, शुक्र ऐसा होता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम शनि को ठीक कर देंगे, हम शुक्र को ठीक कर देंगे, उसके इतने ये उपाय है, ये अंगूठी पहनिए, या ये यज्ञ कीजिए, या ये गाय को दान दीजिए. Which means once we try to explain things rationally, then we try to control it. Next step is control it. The science is like that. Michael Oxford says कि no, this is not possible. Rationalism in politics means, हालांकि राजनीति में खाना बनाने से ज्यादा रीजन काम में आता है, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं है. इसलिए विवेक जो उसने इसलिए क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को सबसे ज्यादा, कि प्लेटो ने सबसे ज्यादा इस रीजन को स्थापित किया. हमें इसको प्लेटो की बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें हीगल की बात को स्वीकार करना चाहिए, जिसने कहा था रीजन एंड रियलिटी आर सेम. आपने पढ़ा उसको फेमस स्टेटमेंट, रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल. जो वास्तविक है वही विवेकी है, जो विवेकी है वही वास्तविक है, इसमें अंतर नहीं है. विवेक को वास्तविकता से पहचाना नहीं जा सकता, जो वास्तविकता है वही विवेकी है, उसी को विवेक कहना चाहिए. जो हो रहा है वही विवेक है. इसलिए इसकी आलोचना की गई, ये कंजर्वेटिव है, ये जो हो रहा है स्टेटस कोइस्ट है, ये चेंज नहीं करना चाहता माइकल ऑक्सफोर्ड. ये चाहता जो हो रहा है वो विवेक है, उसमें विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है अपना आप होगा. अगर हिस्ट्री, अगर इतिहास या समाज ऐसा नहीं चाहता तो अपना परिवर्तन हो जाएगा, उसमें विवेक की आवश्यकता नहीं है. इसलिए उसने कहा कि राजनीति के बारे में, जो ह्यूमन कंडक्ट पुस्तक है जिसमें उसने एक्सप्लेन किया आगे, इसलिए राजनीति के बारे में कोई सामान्य सिद्धांत बनाना या सार्वभौमिक सिद्धांत बनाना संभव नहीं है. अगर बनाने का प्रयास किया जाता है तो वह मूल रूप से हम एक अमूर्त सिद्धांत बना रहे हैं, और जो लाइफ भी अमूर्त है, जीवन भी अमूर्त है, और उस अमूर्त सिद्धांत को समझना असंभव है. इसलिए उस ऐसे सिद्धांत बनाने का प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है. When we are trying to form something, इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो उसने कहा कि परंपराओं को जानना. एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस? हमारा एक्सपीरियंस तो कम होता है, नया एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, इसलिए अपनी परंपराओं को जानना ही राजनीति को समझना या मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है. एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड ट्रेडिशनलिज्म और कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव विचारक भी इसी प्रकार की बात करते हैं. वो भी ये कहते हैं कि अपनी परंपराओं को जानो, डिस्टर्ब मत करो. जो परिवर्तन होता है वो ऐसा होना चाहिए कि मालूम ना पड़े, तब तो परिवर्तन रहेगा. अगर हम परिवर्तन को इम्पोज करेंगे तो वह परिवर्तन नहीं रह सकता. इसलिए वह किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी के भी खिलाफ है, वो रेशनलिज्म के भी खिलाफ है. वो व्यक्ति के जो विचारधाराएं हैं, वो कहता है विचारधारा भी एक रेशनल तरीके हैं कि हमने सोच लिया सोशलिज्म का ऐसा करने से समाज अच्छा बनेगा और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं. हमने सोच लिया लिबरलिज्म में ऐसे करने से समाज अच्छा बनेगा और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं. वो ये कह रहा है कि ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि जो परंपराएं हैं हमारी, उन परंपराओं में जो ये रही है, जो अब तक चल रही है परंपराएं, कुछ परंपराएं समाप्त हो जाती है, परंपराएं परिवर्तित भी होती जाती है, परंपराओं का रूप परिवर्तित हो जाता है. और those traditions which have survived centuries of life, there is something very good, endurable in that tradition, and we should respect that and we should accept that. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को सही प्रकार से चला पाएंगे. ह्यूमन कंडक्ट विल बी गुड ओनली when we know our traditions and we try to follow those traditions. We can change the traditions gradually, but not in such a way that it becomes arbitrary or revolutionary. So he is against every type of revolution. किसी प्रकार के रिवोल्यूशन की बात नहीं की जानी चाहिए, किसी प्रकार के क्रांति की बात नहीं की जानी चाहिए, किसी प्रकार के
सडन चेंज की बात नहीं की जानी चाहिए। इसलिए अंत में हम कह सकते हैं व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिकल फिलोसॉफी। पॉलिटिकल फिलोसॉफी में उसका कंट्रीब्यूशन, जैसा मैंने कहा, मूल रूप से यह है कि वह एक कंजर्वेटिव फिलोसोफर है, कह सकते हैं। वह कुछ ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करता है, वह किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी को स्वीकार नहीं करता है, और वह मनुष्य के नॉन रेशनल जो एस्पेक्ट है उसमें श्रद्धा रखता है, उसमें बिलीव करता है। एंड ही बिलीव्स दैट लार्जली, जो कि आप देखें तो ये इनका ही नहीं है, ये डेविड ह्यूम ने भी ऐसा ही कहा था। और उससे लेके जितने भी कंजर्वेटिव फिलोसोफर्स है, एडमंड बर्क की बात करें या औरों की बात करें, तो वो सब लोग ये मानते हैं कि जो नॉन रेशनल एलिमेंट ह्यूमन बींग्स में, दे डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड नॉट रीजन। रीजन ओनली फाइंड्स सॉल्यूशन फॉर दैट और वेज टू इंप्लीमेंट दैट। हम जो इच्छाएं करते हैं, उन इच्छाओं से हमारा व्यवहार चलता है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम विवेक का प्रयोग करते हैं। सो रीजन इज ए गुड मेथड। इट डजंट डिटरमाइन योर एंड्स। Our ends are determined by non-rational factors and we should respect that. हमारे इमोशंस से हम जीवन को बढ़ाते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। विवेक का प्रयोग हम करते हैं उन इमोशंस से जो जो गोल बनाए गए हैं, उन गोल्स को प्राप्त करने के अच्छे तरीके क्या है, ये हम कह सकते हैं अंत के अंतर्गत। इसके बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे आता था, आई शेयर्ड विद यू, एंड योर questions are welcome. Thank you, sir. You rightly pointed out that Michael Oakeshott's thought is not that difficult as is the writing style. And I must say, you explained his thought in a very simple way so that the student can understand that. You throw light on various aspects of his thought, his books on the experience and its modes, and rationalism in politics and other essays where you discuss that how he is defining rationalism, how he is highlighting the limitations of rationalism, how he is explaining that human behavior, a major part of human behavior is not governed by reason, and so we cannot understand it only through reason. And in his book, this rationalism in politics, the distinction which he makes between the technical knowledge and the practical knowledge. So, and where he talks about then if we cannot understand everything through technical knowledge, then what is the way out? Then to go through the experiences. And here comes the role of tradition. And the kind of change he's talking about, he says that slow changes, which changes, because when we start for any change, we don't know how far it will go. So better approach would be to address the defect in the existing system in place of changing the whole system. So definitely he's against revolutionary changes. So thank you so much, sir, for discussing Michael Oakeshott. And we also learned a lot. Along with the student, I was also learning because we are also teaching it. So we also need this kind of lecture. So now I request the student, आप बच्चे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं. आप चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं या अनम्यूट करके पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं. Sir, one question is there that what is the, one second, let me read it out, sir. What is the relevance of Michael Oakeshott's contribution in present politics? I mean, in present times, contemporary relevance. Yeah. But, well, this is again, we can say that he's very relevant. That is why we are discussing him. After John Rawls wrote in 1971 the theory of justice, the behavioral revolution or the scientific study of revolution of politics became secondary. And there is what we call the revival of traditional political theory, revival of normative political theory. And Michael Oakeshott was always talking about the normative political theory. So he was not in the mainstream when he was alive. But now, because the mainstream is normative political theory, after Rawls, we have many thinkers, feminist thinkers, and Rawlsian critiques and justice and new concepts are coming up. So now, again, the shift is towards normative political theory in the last 30, 40 years. So in the normative political theory field, Michael Oakeshott is very important.
because was one of the lone voices against the scientific theory of politics. So we can say that when we study normative political theory today, then we will have to know something about Michael Oxford, because he was one of the pioneer of normative political theory in the 20th century, before John Rawls. He, along with Hannah Arendt, Eric Vogelin, these are Leo Strauss, these are the 3-4 persons who were in minority, and we're talking about political theory 1930s, 40s, 50s, and 60s, when normative political theory was not so much popular. So that is the relevance today. थैंक यू सर. देयर इज वन क्वेश्चन. आपने अभी सर कहा कि केवल बुक से आपको नॉलेज नहीं मिल सकती और आपको जो एक्सपर्ट्स है उनका गाइडेंस चाहिए. अभी एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने लिखा है वो उससे रिलेटेड ही है. उसका कहना है कि बीइंग अ थियरी स्टूडेंट आई ऑलवेज फेस प्रॉब्लम रीडिंग कंटेम्परेरी थिंकर सच एज फेनन, रॉल्स, फुको एंड आल्सो ऑक्सफोर्ड. सर, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू स्टडी? And also some books, she's asking for books, and more importantly she's asking what is the proper method to study political theory, especially the contemporary theorist. वो तो मैडम पहला है कि जो इंडियन सिस्टम है पुराना, और जो माइकल ऑक्सफोर्ड जिसकी तरफ इंगित कर रहा है वापस से, वही है कि गुरु के साथ बैठ के पढ़ा जाए. जिसने पढ़ रखा है उसके साथ, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो गोविंद को मिलने का तरीका तो गुरु ही है. तो जिसने पढ़ रखा है ऐसा आदमी को खोजें और उनके साथ रहें, तो इजियर वे है. दैट इज द इजियर वे. उसमें डिफिकल्ट वे ये है कि गुरु के साथ रहना पड़ेगा, वो दैट इज व्हाटएवर इट मींस. स्वयं किताबें पढ़ना चाहे तो मैंने जो बताया, मेरा जो मेथड है वो तो मैं आपको बता देता हूँ. मेरा मेथड सिंपल है कि किसी भी किताब को पढ़ने पर, जो भी थमकर आप पढ़ते हैं, पहले उसके एसेंस तक पहुंचे किसी भी तरीके से. तो सेकेंडरी लिटरेचर पढ़कर 3-4 किताब पढ़ने पर आपको मालूम पड़ जाएगा व्हाट इज so specific about a thinker, why he is so famous, what is so specific, why we read him. जैसे प्लेटो है, तो प्लेटो का अध्ययन क्यों करें? वो जो क्यों करे का अध्ययन, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो प्लेटो ने कही वो हर किसी कोई कहता है, मैं भी कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सी बातें हैं. लेकिन वो कौन सी बात है जो उसने कही जो कि यूनिक है, जिसके कारण से हम उसको आज भी याद करते हैं. दैट यूनिक एलिमेंट ऑफ एवरी पॉलिटिकल थिंकर यू शुड नो. And for knowing that, because which distinguishes Plato from Aristotle and from others, that is one point. ये कैसे मालूम पड़े? ये मालूम पड़ने के लिए उसके जो कंटेम्पररी जो थे किसी भी थिंकर के, वो लोग कैसे सोच रहे हैं, वो उनसे अलग कैसे सोच रहे हैं. अगर ये आप मालूम कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है. फिर उसके थॉट के जो बहुत से एलिमेंट्स है वो हमें मालूम पड़ सकते हैं. ये मैं तो ऐसा मानता हूँ. पहले आपको किसी का, हर थिंकर का एक एसेंस होता है, जिस एसेंस को पहचानना चाहिए. बहुत सी पुस्तकें पढ़कर, 2-4 पुस्तकें पढ़कर देखा जा सकता है, या जो अच्छी पुस्तकें हैं लिखी हुई, तो 1-2 पुस्तक पढ़ के भी आपको समझ में आ सकता है बहुत कुछ. तो वो पढ़े और फिर उसको तुलना करें जो उसके समसामयिक जो दूसरे थिंकर थे वो उससे अलग क्या कह रहे हैं, जिससे कि ये अलग बात कह रहे हैं. आपने नाम लिया फूको, कैसे पढ़े? अब फूको पढ़ने के लिए आपको 60s में फूको था, तो उसको पहले पढ़ने के लिए आपको स्ट्रक्चरलिज्म मालूम होना चाहिए, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मालूम होना चाहिए, फिर उसके जो कंटेम्पररी लोग थे 1960s में, वो क्या सोचते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जैसे दूसरे लोग सोचते हैं, हेबरमास क्या सोचता है या डेरिडा क्या सोचता है, तब आप फूको को समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे. ये मेरा मानना है. कोई भी जॉन रॉल्स का नाम लिया आपने, इट इज वे. और उसके लिए जिसने समझ रखा है, अगर ऐसा है तो फिर इसी गुरु के साथ आपसे लगिए, तो आपको बता देगा, आसानी से बता देगा. थैंक यू सर. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन. शी इज आस्किंग that, sir, rationality and reason are two things which make human being different from the animal and other species. So, sir, if we will not use our reason, then what will be the difference between human being and other species? Madam, this is the thinking of the Enlightenment philosophers, which you are quoting. Enlightenment philosophers used to say this, that reason distinguishes man from other beings from other beings. But not everybody agrees with that. There are critique of Enlightenment thinkers, like existentialists, for instance. They say that no, it is not. Spirituality is also unique to in human beings, not to other beings. Religion is also unique to human beings and not to other beings. So why shouldn't we say that morality is also
specific to human beings and not to other beings. So why should we say that human beings are those who are moral, who are spiritual, and who are religious, not necessarily rational? Because rationality itself has many, stages. It is not that we are rational and others are non-rational totally. No, it is not possible. There are stages of rationality. For instance, we can compare with chimpanzee. Now, chimpanzee, or even compare with elephant. Now, they are those creatures who have some sort of rationality, and we are experimenting with other beings also. We do not know what are the consequences yet, but chimpanzee, we know that we can change, we can challenge. They are slightly there is a qualitative difference, but they also have some sort of rationality and reason, which may not be determined. The only difference, as per Yuval Harari, the Israeli philosopher, he says that the difference between human beings and other beings is that human beings have a capacity to imagination. Now, imagination distinguishes human beings from other beings, not rationality nowadays. What is it that it means? Imagination is, he gives a very good example, like there are two chimpanzee. They can exchange, for instance, if one chimpanzee has got a banana and another chimpanzee has got an apple, and if the chimpanzee who has got banana, he wants to eat apple, then he can exchange it with other chimpanzee. It is possible, it is happening, that he can give it his banana to that fellow, the other chimpanzee, and he will give him the apple, and they can exchange and they can eat. Now, it is rational behavior. But they cannot, this doesn't require any imagination because it is actually happening. But a chimpanzee cannot give 5 rupees to another chimpanzee and say that you just go to market and buy an apple. Because what is money? Money is imagination. What is religion? Religion is imagination. All of us believe that rupees 1 means this, and it is imagination. It has nothing, no reality. Like, for instance, we know about demonetization. In one night, the 1,000 rupees note became a piece of paper because it was not real. It was just imagined. The government of India imagined that we should accept it, and we accepted it. Even today, if someone says that government of India says, now from tomorrow, there will be no note. We will do only 5 rupees note will be legible. Then, so imagination is that thing which controls, which can cater to thousands and lakhs of people. They can sit together and they can think in the same way. Religion is the same. Why we are Hindu and you are Hindu? Because we all imagine in the same thing. No one knows what is Hinduism. No one knows what is God. But we all imagine and we all accept it. The chimpanzees can't accept. So what she was asking is a traditional question. Traditional distinction that rational and non-rational. Nowadays, it is not accepted as such. Rationality has many stages. Human beings are at a different stage. We don't know. We never know if some other creature comes and has become more rational. So from somewhere can come. We do not know yet. Because human beings' history is of only 2-3 lakhs years. There are creatures who have survived crores of years. How did they survive? They have some reason or rationality. Why which they survive? That is what I can say. Otherwise, it can go on. Sir, one more question is there. Yes. Nancy is asking, sir, in today's time, even our experiences could be controlled by some societal institutions, which can lead to incorrect knowledge. How can we explain Oxford in such scenario? Example, she's given an example. We experiencing hate towards other religion could be result of vested interest of politicians. Yes, that's right. No, that's right. But that is problem. No. I'm talking from Oxford's point of view, not my point of view. Oxford does not distinguish between good experience and bad experience. And he does not propagate good experience. He's not saying that you should have good experience only. No. He's just explaining objectively that knowledge comes through experience. Now, that knowledge is right or wrong, that is a value judgment. That is a morality. That he's not teaching. That what should be, because what you are saying, a hatred of other religion is a value judgment. I may say that it is wrong because I'm rational, I'm secular, I think it is wrong. But for someone, it may be right. I don't really know. That is a value judgment. We only say it is wrong because we think it will destabilize society. That is why it is wrong. Why otherwise, if we hate someone, why it is wrong? Because we believe that it will create some chaos,
it will create some problems. So we will not be safe or secure. So it is not good. The difference between good and bad is given by rational. It is given by Immanuel Kant. You might be knowing about the categorical imperative, his theory of categorical imperative, when he says, he was asked with this moral question, what is the difference between right and wrong? How you say that what she was asking, hatred to other religion is wrong? Who decides this? It is not you or I can decide. Then Kant gave a criteria to decide what action is right and what thinking is right and what thinking is wrong. He says it is very simple. Only that action is right which the whole community can perform at the same time everywhere, and they can survive. So killing is wrong because it is not possible logically, theoretically, that everybody kills everybody else and we survive. No, not possible. Killing is wrong because some persons are not killing. That is, ahimsa is better than hinsa. Why? Because or hinsa exists only when there are some ahimsak. If there are no ahimsak, like Gandhi has said, कि अगर आप मेरी आंख फोड़ोगे और मैं कहूंगा मैं भी तेरी आंख फोड़ूंगा, तो इसका नतीजा ये होगा सब अंधे हो जाएंगे और तो कुछ होगा नहीं. इसलिए आप मेरी आंख फोड़े और मैं आपको माफ कर दूं तभी दुनिया चलेगी. वो मैं करूं या कोई और करे, but hinsa can exist only when there are some ahimsak. Grana can exist only when there are some persons who love. So grana cannot be a good thing, and not everybody can live with grana with each other, but everybody can live with each other with love. So what you are saying, according to Oxford, he does not distinguish. He does not pleading you should not hate others. No, he's not going into that. He's just saying that it is not rational, but experience, which is the basis, should be philosophy. That is what he's saying. What is your philosophy? That is your problem, not his. Thank you so much, sir. So this was the last question in the chat box, and through this question, we can understand that your lecture reached the student. They can understand it, and that's why they are asking questions. So, and we also learned a lot from it because we are also teaching it, and Oxford actually is a little complex thinker to teach, also to read also, and to teach also. So thank you so much, sir, for sparing your valuable time for us, and we hope that we'll get this kind of opportunity to listen you in future also. Sure. Now I request Dr. Punita Pathak from Department of Political Science to. Okay, Renu, do you want to say something? Yes, please. Sir, Dr. Renu Srivastava is the head Department of Political Science at VKM. There's two colleges. One is Vasanta College, another is VKM. So she is the head Department of Political Science in VKM. She wants to ask something, to say something. Pandey was there, no? Chandrakala Pandey madam was in the main department, BHU. Yeah, no, she was in college. She was in MMV. She was in MMV. Earlier, she was in MMV, Mahila Mahavidyalaya. So there are four colleges, sir, basically affiliated to Banaras Hindu University. So one is Vasanta and another is VKM and then DAV and RMILA. Renuti, please unmute yourself and please. Yes, ma'am. Unmute yourself. Very good afternoon, sir. Yes, ma'am. I was listening to you very intently, and it has been a great moment of learning. Understanding Oxford was not at all easy, and for a college where this syllabus has been introduced in 2021, sir. So I was only leaping through who is Oxford and what he is trying to say. आपने इतने simple और comprehensive way में ये समझाया है. So it has really benefited me like anything, and I was only thanking Preeti that Preeti, you are going to solve my problem of teaching Oxford. So maybe now I am going to be in a position to interact with my students, and I could really see that the questions which were really being thrown by the students, they were really trying to understand, and they have really understood it well. My one query is that when you started your lecture, you said थोड़ी hearing problem और बहुत feeble voice है sir. मैं हमेशा अपना कान दे रही हूँ. ये मैंने सुना कि it is really oceanic waves. Oxford की जो theory है, वो कहता है कि politics is like oceanic waves. तो अभी जो आपने deal किया, उससे मुझे बिल्कुल ये समझ में आया. We have been given a parameter when we divide political science, the stages
into two parts. That is, one is traditional, then behavioral, and then the synthesis of traditional and behavioral into the pattern which Oakeshott thinks, that is revivalism of traditionalism. सर, जो रिसर्चेस हम लोग कराते हैं उसमें जो ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हम फॉलो करते हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा we suppress our experiences and thinking. We are mostly trying to quote already what has been written. That is what overview of literature means. तो ये हो गया rational, if I am trying to understand that. लेकिन नॉन रैशनैलिटी तो तब होगी, that element of non rationality which comes to me at the spur of the moment through my experience कि नहीं, ये थोड़ा मैं इससे अलग समझ रही हूं या हमारे एक्सपीरियंस में नहीं हुआ है. तो क्या सर पॉलिटिकल साइंस में कोई भी स्कोप है कि हम नॉन रैशनल एलिमेंट्स को रैशनल एलिमेंट्स के साथ सिंथेसाइज करके अपने रिसर्चेस को प्रेजेंट करें तो वो वैलिड मानी जाएगी? वुड इट नॉट बिकम इररेलेवेंट? क्योंकि सर मेथोडोलॉजी, जैसा कि आपने कहा, ओनली 1% ऑफ पीपल understand what is scientific methodology and quantification, और उससे सूचनाएं तो बहुत हो जाती हैं लेकिन एनालिसिस क्या करनी है, नतीजे क्या निकालने हैं, ये पता नहीं चलता है. That comes from the field study of the lay people who are 90% in number. क्या हम उसको ये कंबाइन कर सकते हैं रैशनल को नॉन रैशनल से? मैंने बहुत सारी बातें कह दी क्योंकि मुझे भी सुनने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन आपने ये सब कवर किया सर. सो नाउ आई विल कंक्लूड व्हाट आई वांट टू नो. साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हम फॉलो करते हैं रिसर्च के लिए. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन रैशनल एलिमेंट व्हिच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड और व्हिच कैन बी written and accommodated in our research and that will not be considered irrelevant? मैडम ऐसा है कि ये तो देखिए, जो हमारे यहाँ रिसर्च होती है वो रिसर्च मुख्य रूप से जो 60 के दशक में, 50 के दशक में जो बिहेवियरलिज्म आया था उसी का अभी तक एप्लीकेशन हो रहा है, उससे परिवर्तित नहीं है. बहुत थोड़ी जो थियोरेटिकल रिसर्च होती है उसमें कोशिश की जाती है, जैसे हम कहें कि मान लो ऑक्सफोर्ड के विचारों का अध्ययन, ऑक्सफोर्ड के विचारों में स्वतंत्रता का अध्ययन, फॉर इंस्टेंस एक क्रिटिकल स्टडी, इस तरह का कोई अगर लेते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो साइंटिफिक मेथड जो है वो काम में न लें. लेकिन ऐसे जो रिसर्च की जाती है, थियोरेटिकल रिसर्च, कौन है, उसमें जो रिसर्च की जाती है उसमें समस्या ये आती है कि वो मुख्य रूप से कठिन होती है, वो आसान नहीं होती. हालांकि उसको आसान माना जाता है कि आप कुछ भी उधर से करके लिख लें, जिसे कहते हैं कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन अगर सिद्धांतिक अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें वो आसान नहीं मानी जाती, उसको नए तरीके से करना पड़ेगा. और उसको करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिनियम जो है वो हर विश्वविद्यालय के अलग अलग अधिनियम होते हैं, उनमें देखना पड़ेगा कि, क्योंकि सब अधिकतर विश्वविद्यालयों में क्या है, एक सेट पैटर्न है आपको रिसर्च करने का, आपके चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए. जब तक उनमें बदलाव ना हो, कोई बैठ के उनमें बदलाव करके नई तरीके से प्रस्तुत नहीं करे, वरना तो आप डिग्रीज लेते समय ये नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है. किताबों में कर सकते हैं, डिग्री लेने में तो एक स्पेसिफाइड तरीका है कि आपको पीएचडी की डिग्री तब मिलेगी जब चैप्टर्स इस प्रकार के लिखे हुए होंगे, वरना सुपरवाइजर ही मना कर देगा कि भैया आप ऐसा कैसे कर रहे हो, मेरी ये पास ही नहीं होगी, वो काउंसिल में पास नहीं होगी. तो वो तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है मैडम, उसको तो अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम. ये तो बट अगर थियोरेटिकल कोई रिसर्च करता है, जैसे मैंने बताया, तो उसमें तो बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है नई तरीके की. जितनी भी किताब, जो माइकल ऑक्सफोर्ड की जो किताब है वो पीएचडी रिसर्च है. जितने भी थिंकर्स हुए हैं कंटेम्प्रेरी, उन सब की पहली पुस्तक जो होती है वही सबसे महान होती है, वो पीएचडी रिसर्च होती है. उसमें 3, 4, 5 साल वो लगाता है, उसके बाद वो उसी को एक्सटेंड करता रहता है किसी न किसी रूप में. मैंने भी ये किया था, मेरी किताब, मेरी थीसिस है गांधी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये मेरी प्राइमरी थीसिस है, जो ईस्टर्न, उसी को मैं एक्सटेंड करके थियोरिटी के अंदर सब बातें करता हूँ. तो ये तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब तो मैं क्या दे सकता हूँ मैडम, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर देखें और ऐसे लोग हों रिसर्च कराने वाले और करने वाले, वही बता सकते हैं. मैं तो इससे क्या.
म्यूट नहीं है, म्यूट है आपका. Kindly unmute yourself, Dee. We are not able to hear you. सर आपके लेक्चर में मेरे सारे क्वेरीज कवर्ड हो गए. मैं बस उससे सोचना और समझना ये चाह रही थी, और जवाब मुझे सारे मिल चुके हैं सर कि हमारी लिमिटेशंस जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है स्टडी की, उसमें कहाँ है, एंड इट हैज बीन पॉइंटेड आउट वेरी नाइसली बाय ओकशॉट. तो इसको कंबाइन कर सकना और ट्रेडिशनलिज्म को रिवाइव करना इन व्यू ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड प्लीथोरा ऑफ डेटा विच इज सराउंडिंग अस, तो उसमें हम समझते हैं कि नॉन रैशनल एंड एक्सपीरियंशियल एलिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. So it is going to enrich our scientific research. Thank you so much, sir. हमने समझा नहीं था. This would be first time I will be teaching it. तो मैं आपको सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी. So I would be forgiven अगर relevant question नहीं है तो. I was just trying to understand. It was very good. Thank you, sir. So, thank you. Now I request Dr. Punita Pathak to present formal vote of thanks on the behalf of the Department of Political Science, Vasanta College. Punita, please. Yes. Am I audible, Dee? Yes, you are audible. Okay. Thank you, Dee. A warm and cherished afternoon to our most valued honorable Chief Guest, Sir, Professor Naresh Dadhi, sir, senior faculty member, my colleagues, and dear students. It's my privilege to propose a vote of thanks and to acknowledge those who contributed to make this webinar possible. On the behalf of Vasanta College for Women, Rajghat, I, Dr. Punita Pathak, convey my heartfelt vote of thanks to our chief guest, Naresh Dadhi, sir, who, despite of his busy schedule, greeted the occasion. It was a pleasure to have such an eminent and distinguished personality among us. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely illuminative not only for the students but for us too, sir. Your views about the political philosophy of Michael Oakeshott have enlightened the minds. Your lecture gave deep insights to understand the contribution of Michael Oakeshott in the field of political philosophy. It was truly an adorning session which was embellished by your didactic lecture. Thank you, sir, for bestowing your wisdom on us, and it was an honor to have you on our occasion, on our this event, that is webinar. Thank you so much, sir. Next, I would like to thank our senior D and department in charge, Dr. Preeti Singh D, for organizing this workshop. I should mention our deep sense of appreciation for her sheer dedication and ardor for organizing all such academic activities. I would really appreciate that it's her continuous perseverance that our department is involved in all sorts of academic activities, ventures with diverse topics. We are inspired by her assiduous attitude and hope that if we can get some part of her traits, that we will consider us to be unseen lucky. Thank you, Dee. Thank you so much, Dee. And now I would like to acknowledge my gratitude to our fellow colleague, Dr. Manisha Mishra, for her kind support many times. Although everything is being perfectly organized, there are some minute details which are often identified and improvised by her. I appreciate her a lot for unflinching support and coordination. Thank you, Manisha. This vote of thanks will be incomplete without appreciating the active participation of our students. It's the enthusiasm and the spirit exhibited by our students that makes us motivated and stimulate for continuing such academic activities. So be energized and always be dynamic. So again, I would like to thank all for being a part of this event and sparing your time. Thank you all. I would like to also thank the faculty members who have joined us from VKM, Renudi, and I could see Anuji was there, Saroj Upadhyay was there, because we need people together where we can engage in some academic discussion and dialogue. So I once again thank you all. Thank you so much, sir. Thank you. Oh, and we hope that we'll get the opportunity to listen you in future also. No problem. Anytime. Thank you so much. Thank you.